everyone, welcome back to our home study channel. So in previous lesson we learned rational and irrational numbers. So in this chapter we will learn parallel lines and transversal. So let's get started. So let's recall first what is parallel lines. The lines in the same plane which do not intersect each other are called parallel lines. I will show you here. For example, this is line L and this is line M. So we will call it line L is parallel to line M, or we can say line L and line M are parallel lines, and we will write this as line L parallel line M. And अगर line L ऐसी है L and M goes like this, then we cannot say that line L and M are parallel. Now second part is transversal. What is transversal? If a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called a transversal of those 2 points. For example, this is line M and this is line N. This line L intersects line M and N, okay, at point A and B. So what we will call this, line L is a transversal of line M and line N. Now we will study angles made by transversal. There are 3 types of angles. One is corresponding angles, the second one is interior angles, and third one is alternate angles. So this is line PQ and this is line RS. So line AT is transversal to line PQ and RS, okay, and there we get 2 points, one is M, second one is N. So यहाँ पे अभी हमारे 8 angles form हो रहे हैं क्योंकि AT is transversal to line PQ and line RS. So here is first angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो अभी इसमें हम देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं. सपोज हम अभी ये एंगल्स को 1 नंबर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इसमें एंगल 1 इज एंड एंगल 5 आर corresponding angles, मतलब एंगल 1 and एंगल 5, एंगल 2 and एंगल 6, एंगल 2 and angle 6, 3 and 7, 4 and 8, angle 3 and angle 7, angle 4 and angle 8. तो इसमें हमें 4 नंबर ऑफ पेयर्स मिले हैं जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. मतलब AMP एंड MNR आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. 2 क्या है, AMP एंड 6 इज MNR आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सेम 1, 4, 3 का भी सेम वैसा ही आएगा. नाउ सेकेंड वन इज इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर मतलब जो अंदर की साइड में एंगल्स होते हैं वो मीन्स एंगल एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5. ये जो है वो इंटीरियर एंगल्स है. मतलब कि ये पोर्शन के अंदर जो भी एंगल्स आते हैं वो इंटीरियर एंगल्स है. तो एंगल 3 का इंटीरियर एंगल्स आएगा एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6. एंगल 3 मतलब एंगल PM N and angle MNR. सेकेंड वन क्या आएगा, एंगल 4 and angle 5.
मतलब एंगल QMN and angle MNS. These are interior angles. Third one is alternate angles. Alternate angles में two types होते हैं. One is interior alternate angles and second one is exterior alternate angles. तो अल्टरनेट मतलब जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं. तो अल्टरनेट में इंटीरियर फर्स्ट हम देखेंगे. इंटीरियर मतलब अंदर के जो एंगल्स है उसमें अल्टरनेट एंगल्स. तो फिर एंगल 3 का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा? एंगल 5. मतलब एंगल 3 एंड एंगल 5. एंगल 3 मतलब एंगल PMN एंड 5 मतलब एंगल MNS. एंगल PMN एंड एंगल MNS. सेकेंड इज एंगल 4 का अल्टरनेट क्या आएगा? एंगल 6. तो एंगल 4 एंड एंगल 6. तो एंगल 4 मतलब एंगल QMN एंड 6 मतलब एंगल MNR. एंगल QMN एंड एंगल MNR. ओके, तो ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. नाउ सेकेंड वन इज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. एक्सटीरियर मतलब एंगल्स एट द आउटर साइड ऑफ द लाइन्स. आउटर साइड में कौन से एंगल्स है वो एक्सटीरियर एंगल्स रहेंगे. तो वो है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 जो कि आउटर साइड में आते हैं लाइन्स के. तो फिर एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल रहेगा एंगल 7. मतलब कि एंगल 1 एंड एंगल 7. एंड 2 का रहेगा एंगल 8. तो फिर एंगल 2 एंड एंगल 8. तो एंगल 1 क्या है? एंगल AMQ. एंगल AMQ एंड एंगल 7 क्या है? RNT. Then एंगल 2 एंड एंगल 8. एंगल 2 क्या है? AMP. एंगल AMP एंड एंगल 8 मतलब SNT. So these are our angles which are formed by the transversal line. Let's start practice set 2.1. What is first question? In the adjoining figure, each angle is shown by a letter. Fill in the boxes with the help of figure. Here we find out corresponding angles and interior alternate angles. So मैंने पहले भी यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके रखा है. तो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो अभी हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेगा? एंगल W. एंगल Q का X, एंगल S का Z, एंगल R का Y. तो Q का क्या लिखेंगे? X लिखेंगे. एंगल S का लिखेंगे एंगल Z एंड एंगल R का लिखेंगे एंगल Y. नाउ सेकेंड वन इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. इंटीरियर मतलब अंदर के जो एंगल्स है उसमें अल्टरनेट एंगल मतलब कि अपोजिट एंगल्स. तो अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल S का देखना है. एंगल S का क्या आएगा? अपोजिट एंगल एंगल X. एंड एंगल W का आएगा एंगल R. Now what is second question? Observe the angles shown in the figure and write the following pair of angles. Here is first is interior alternate angle, second is corresponding angles and third one is interior angles. तो मैंने फिगर ड्रॉ करके रखी है. So here I have to find what? Interior alternate angles. Interior alternate angles मतलब कौन से आएंगे? इंटीरियर मतलब B, C, E एंड H जो है वो इंटीरियर एंगल्स है, लेकिन इसमें हमें अल्टरनेट देखना है मतलब अपोजिट एंगल्स देखने हैं. तो एंगल B का अल्टरनेट एंगल क्या आएगा? एंगल H. एंड एंगल C का आएगा एंगल E. Now
नाउ सेकेंड वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल ए का आएगा एंगल ई, बी का आएगा एंगल एफ, डी का एच, एंगल डी एंड एंगल एच, and last one is angle C and angle G. Now last question is interior angles. तो इंटीरियर एंगल्स कौन से आएंगे? अभी एंगल B का भी आएगा एंगल E, मतलब ये अपोजिट नहीं, अल्टरनेट नहीं है, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है, इसलिए एंगल B का एंगल E आएगा एंड एंगल C का एंगल H आएगा. Thank you friends for watching our video. If you like our video, like, share with your friends and comment. And friends, don't forget to subscribe to Home Study channel and hit the bell icon. Thank you.